جسے 40 روز سے زائد کا عرصہ مکمل ہونے کو ہے۔ اس دوران یہ تحریک تربت سے ہوتے ہوئے بلوچستان کے مختلف علاقوں سے گزرتے ہوئے کوئٹہ پہنچا، اور کوئٹہ میں خون جمانے والی سردی میں بھی 4 روز کے قیام کے بعد بلوچ لاپتہ افراد کے لواحقین کے ساتھ اسلام آباد کی جانب روانہ ہوا۔ اس دوران تمام تر رستوں میں دمکانے اور پیچھے ہٹانے والے اور پرتشدد پالیسیوں کے باوجود بھی یہ لانگ مارچ ایک پرامن طریقے سے اپنے منزل تک پہنچ گیا، اور یہاں پہ پرتشدد پالیسیوں کو اپنانے کے باوجود بھی آج یہاں پہ ہمارے اس تحریک کو، اس لانگ مارچ کو 14 دن ہو رہے ہیں۔ لہٰذا اس دوران یہاں پہ پولیس کی جانب سے اور دوسرے انتظامیہ کی جانب سے ان لواحقین کو ہمیں ہر طرح سے ٹارچر کیا جا رہا ہے، ہر طرح سے ڈرانے کی اور پیچھے ہٹانے کی تمام تر کوششیں کی جا رہی ہیں۔ اس صورت میں اگر دیکھیں ہم تو کبھی سامان روکنے اور کبھی ان کی انٹری کرنے پہ جو ان کے اعتراض ہوتے ہیں، تو ان کے باوجود بھی ہمارا یہ دھرنا یہاں پہ جاری ہے، اور یہ ایک ثبوت ہے کہ ہمارے پاس جو بلوچستان سے فیملیز آ رہی ہیں، ان کی ایک بڑی تعداد یہاں پہ ہمارے پہنچنے کے بعد جو فیملیز آئے ہوئے ہیں وہ ہمارے ساتھ اس کیمپ میں شریک ہے۔ تو یہ بلوچستان میں ہونے والے جبر کے تسلسل، نہ رکنے والے تسلسل اور جبری گمشدگیوں کا یہ ایک ثبوت ہے کہ یہ بلوچستان میں ایک المیہ ہے، ایک انسانی المیہ ہے کہ جس میں ہم لوگوں کو یہ باور کرانا چاہتے ہیں کہ 70 سالوں سے ہمارے لوگوں کو، ہمارے جو لوگ ہیں ان پہ یہ ظلم کیا جا رہا ہے، 2 دہائیوں سے ان کی مسخ شدہ لاشیں پھینکی جا رہی ہے، انہیں تعلیمی اداروں سے، گھروں سے اور چوراہوں سے اٹھا کر لاپتہ کیا جاتا ہے، اور سالہ سال ہمیں یہ خبر نہیں ہوتا کہ ہمارے لوگ کہاں ہیں۔ اس کیمپ میں ہمارے ساتھ ایسے خاندان بھی ہے کہ جن کے پاس 4 لوگوں کے بھی کیسز ہیں، ان کے گھروں سے 4 لوگ بھی اٹھائے گئے ہیں، 3 لوگ بھی اٹھائے گئے ہیں، ان کے چھوٹے چھوٹے جو بچے ہوتے ہیں، کئی تو وہ 15 سال کے بچے بھی اٹھائے گئے ہیں، 13 سال کے بچے بھی اٹھائے گئے ہیں۔ اور ہمارے پاس بلوچستان کے ایسے علاقوں سے آئے ہوئے لوگ یہاں پہ موجود ہیں کہ جن میں نہ میڈیا کا اثر رسوخ ہے اور نہ جہاں پہ لوگوں کو جانے دیا جاتا ہے۔ یہ اس ظلم کا، اس جبر کا ایک منہ بولتا ثبوت ہے کہ بلوچستان میں جاری اس ظلم پہ سب کو بولنا چاہیے، اس کی مذمت کرنی چاہیے، اس پہ مزاحمت بھی کرنی چاہیے۔ جب ہم یہاں آئے تھے تو ہمارے پاس 40 کے قریب 50 تک ہمارے پاس لواحقین تھے، لیکن یہاں پہنچنے کے بعد ان کی تعداد بڑھ چکی ہے۔ ہمارے پاس بچے بھی ہیں، خواتین بھی ہیں، اور ہماری بزرگ مائیں بھی ہیں جو سردی میں دن رات یہی مطالبہ کرتے ہیں کہ ہمارے جو لوگ ہیں ان پہ کوئی قصور ہے، ان پہ جو کیسز ہیں ان کو سامنے لایا جائے، انہیں عدالتوں میں پیش کیا جائے، انہیں ان کا جو بنیادی حق ہے انہیں وہ فراہم کیا جائے۔ اسی طرح ہمارے پاس ایک فیملی ہے، کوئل خان کی فیملی، میں ان سے درخواست کرتی ہوں کہ وہ یہاں آئیں، اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ اگر داد محمد کی فیملی یہاں موجود ہے تو ان سے درخواست ہے کہ وہ یہاں آئے۔ داد محمد کی فیملی، لاپتہ داد محمد کی فیملی میں سے کوئی بھی یہاں موجود ہے تو وہ آئے اور اپنے خیالات کا اظہار کرے۔ داد محمد کے سن 2013 میں اٹھا کے وہ سریاب روڈ کوٹیا میں، تو سن 2013 کے اٹھا کر سریاب روڈ کوٹیا، ادھر سے 13 سال ہے لاپتہ ہے ابھی تک۔ ہم اس اظہار میں ابھی ادھر سے پہنچایا کہ ہمارے پاس انصاف کو ادارہ انصاف کرے۔ ہم اسی وجہ سے آیا ہے، سردی میں ماں بچہ بہن سب ادھر سے آیا۔ ہم لوگ کو انصاف والا آدمی نہیں ہے، انصاف کرے، لائے عدالت میں لائے اور جیلوں میں لائے، اس کو جرم ہے جرم اس کو کرے،
پھر لائے. سالم محمد داد محمد دونوں ایک جگہ میں گم شدہ ہے 13 سال میں. بچے آپ کے دونوں؟ نہ چاچا کا بچے, چاچا کا بچے. ابھی ایسا والا دارا ہے تو اس کو لائے جائے. کیا قصور ہے اس کو لاپتہ کیا سریاب روڈ کوٹا. ہم لوگ اسی 18-19 گھنٹہ سفر کیا, ادھر سے آیا پہنچ گیا. کیا قصور ہے اس میں؟ تو بولے آ جائے, ادھر سے پہنچے, ہمارے انصاف کرے. ہم انصاف کے بعد میں آیا ہے, انصاف کا بات پر آیا ہے. ہم ایسا نہیں ہے سب رات میں انتظار کر رہے ہیں اس کو. ہم لوگ کو کیا قصور ہے؟ 13 سال تو بڑا چیز ہے. 3 دن تم دیکھو تمہارا بچہ ضائع کرے, تم اس کو بولو کہ 3 دن میں تم برداشت کرے گا؟ تم 3 دن میں برداشت نہیں کرے گا. 13 سال تو بہت اضافہ ٹائم ہے. ہم بوڑھا آدمی ادھر سے آیا تو انصاف کا بات پر آیا. ایسا کرو, اس کو انصاف پر, اس کو عدالت میں لاؤ, عدالت میں پیش کرو. جس جرم ہے اس کو جرم میں رکھو. کیا اس کا مطلب ہے؟ ہم انصاف سے بات پر آیا ہے. ٹھیک ہے, تھینک یو. لاپتہ عبدالکریم کے لواحقین سے درخواست ہے کہ وہ یہاں آئے اور اپنے خیالات کا اظہار کرے. تمام لاپتہ افراد کو, تمام لاپتہ افراد کو بلوچ نسل کشی, بلوچ نسل کشی. لاپتہ عبدالکریم کے لواحقین یہاں موجود ہے تو اسٹیج پہ آئے اور اپنے خیالات کا اظہار کرے. تمام لاپتہ افراد کو بلوچ نسل کشی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. چموچا سر موتی گوارانی بزرگانی شکریہ ادا کرنی. موچ آوانی جرت تھا ہمیں اڑے بزدلا نام پر 4 گپے جنہ کا فرمان کرتا. تو یا نعمت دن دائنی جرت دن کشا بلوچستان لاپتہ مردمانا آئین اوتی کوپا زمائر لڑے تو مروشتانی دہا تھا. من عبدالکریم براس سن منی براس 2016 دبئی ٹیکسی ڈرائیوری بودا. دبئی آتا چھٹیا ادا آئی ایس آئی والان باقی مکل کے نام حسین آئی ایس آئی والان کرنل حمزہ خاران نوشکیا انچارج بوتا. امائی گنڈا ان کے استیم براسر نیچس کرتا. بعض تحقیق کا پت تنائی دم موتر کوشش کرتا سر کہنے گئے مختلف ذریعہ انتا شمع ڈیمانڈ کنک بوتا. چونکہ شمع واسا ڈن بوتا گیا ڈیمانڈ تو آئینم میں پورا کرتا گیا. آخری آت 2017 اس کا نام من اطلاع بوتا دبراس نوشکے ایف سی کیمپ آئیں پدا شاد پدا مر معلوم ہے کہ آیا براسار کچھ دیش یا زندگی آستے ہمیشت. من شہدارہ والا گشاگل اوٹین اگر شما کشتا مردی زاگے وڑا کشتا ہم کشتا موتی ماسار ایک وڑے تسلی دی. پیس میں وفات بو 2019 وفات بو تڑپک گیا اور کم سے کم موتی پیر ماسارا تسلی دین کے تیزاگ نیستے تیزاگار ہم کستے شہید کرتا یا جتا گیش. اگر ہستیں مہربانی کا ہستیں تو بھائی دے رہا منظرام و بیار من خیل اردو. دوسرا میں چیف جسٹس صاحب سے سوال کرتا ہوں, اسے پوچھتا ہوں کل پرسوں آپ پوچھ رہے تھے آمنہ جنجوہ سے کہ میں کیا کروں. چیف جسٹس صاحب میں آپ کو بتاتا ہوں, آپ بلائیں, اگر بلا سکتے کرنل حمزہ کو بلائیں, اس سے پوچھیں خاران نوش کے واشق والے سارے لاپتہ لوگوں کا آپ کو سراغ وہاں سے ملے گا اگر آپ اسے پوچھ سکتے. برائے مہربانی اس طرح عدالتوں میں بیٹھ کر ہماری تماشا نہ بنائی جائے. اگر آپ نے پوچھنا ہے آپ نے کرنا ہے, میں آپ کو کہتا ہوں آپ بلا لے کرنل حمزہ کو. خاران واشق میں نوشکی میں انچارج تھا 2013 میں, آپ ان کو بلا لیں, آپ ان کو کچہرے میں کھڑا کریں, اکثریت لاپتہ لوگوں کا سراغ آپ کو وہاں سے مل جائے گا. دوسری کاگر صاحب آپ نے تھوڑی سی بات کی کہ ان کو 2 ڈنڈے لگے تو کیا ہوئے. میں بھی خدا سے یہی دعا گزار ہوں
कि आप बच्चों को भी इसी तरह डंडे पड़े और आपकी सुनने वाला कोई ना हो, आप भी इसी तरह बेबस हो। अगर हमारा और आपका खुदा एक है तो इंशाअल्लाह ये दुआ जरूर कबूल हो जाएगी, आप भी एक दिन ऐसी तड़पते रहोगे। वगरना अगर आपका खुदा हमारे खुदा से ताकतवर है तो हमारे लिए यही मजबूरियत थी, लेकिन आवाज उठाते रहेंगे। आज हमें हिम्मत मिला है इन बहनों की वजह से, हमें जुर्रत मिला है इन बुजुर्गों की वजह से। आज हमने भी हिम्मत किया है, बोलेंगे। इससे पहले हम इतना नहीं बोलते थे, भले उसके लिए जो भी कीमत अदा करना पड़े हम तैयार है। हैरानी की बात यहाँ ये होती है कि कैंप में हमारे आने वाले जो खाने का सामान होता है, हमारे कंबल होते हैं, उनकी जो तलाशी है वो ली जाती है, लेकिन 70 सालों से जो लोग हमारे लोगों पे जो मुजालिम हो रहे हैं, 20 सालों से जो हमारे लोगों की नस्ल कशी है वो हो रही है, उस पे ये इंतजामिया इसके कानों में जू तक नहीं रेंगती। तो हमारा सवाल यही होता है कि ये इंतजामिया, ये पॉलिसीज, ये स्टेट क्या सिर्फ बलोच नस्ल कुशी को प्रमोट करने के लिए अपने ये इदारे बनाती है? क्या सिर्फ उन्हें हमें टॉर्चर करने के लिए वो उन्हें ये इजाजत देती है कि आप इन्हें टॉर्चर करें, आप इन्हें रोकें, आप इन्हें धमकाएं? बाकी इन इदारों में हमारे लिए रखा क्या है? मैं अब बुलाना चाहती हूँ लापता लुकमान खान के फैमिली को कि वो यहाँ आए और अपने ख्यालात का इजहार करे। लापता लुकमान खान की फैमिली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम तोहरमंद है। मेरा भाई लुकमान खान शाम 4 बजे से निकला घर से, शाम ये शहर से गया बाजार के लिए सामान लेने के लिए, वापस आ रहा था। एफसी चेक पोस्ट पे अमीर नवाज एफसी चेक पोस्ट पे पहुंचा, वहाँ पर भारी नफरी तैनात था, वहाँ पे रोकने की कोशिश की। उसने मेरे को पीछे से एजेंसी वाला कोई गाड़ी आया था, नील गाड़ी रंग था, उसमें 5 अफराद सवार था। उसने मेरे जबरदस्ती भाई मोटरसाइकिल पर गिराकर उसने जबरदस्ती उठाकर जब उतर कर लापता किया। इसका जो हमारे भाई हैं लापता हैं उसको बाजियाब किया जाए। पूरे रियासत से दरख्वास्त है जनरल आसिफ मीर से, अगर हमारी जो भाई है किसी को जुर्म किया है, किसी के ऊपर FIR है, उसको अदालत में पेश करें। जितने बलोच लापता हैं उसको बाजियाब किया जाए। अगर हमारी रियासत में इतना जुल्म और सितम उठाती है तो गरीबों के ऊपर, जो हमारी डेराबट्टी इलाके जो बंदे हैं गरीब है, मजलूम है, जो बैठे हैं, उसकी घर जलाकर फिर गरीबों को घर जलाकर उनको बंदों को उठाकर जबरदस्ती लेकर जा रहा है। अगर जुर्म इतना है तो उनको शायद कोई भी सह नहीं सकता है, लेकिन हमारी बलोच नस्ल कुशी और हमारी बलोच की इतना जुल्म, इतना हम लोग माँ बहने की इतना हम बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। अगर इतना करना है तो विरासत तो इतना उनको माफ नहीं होगा, उनको उनकी बदला मिलने वाला है। अब अगर मेरे भाई जितना अगर कोई मरा हुआ उसने कत्ल कर दिया तो हमने इतला दे दें। अगर मेरा भाई उनको मरा हुआ नहीं हुआ उनके पास है तो अदालत में पेश करें। अगर कसूरवार नहीं है, कसूर नहीं है, उसको बाइज्जत रिहा कर दिया जाए। हम माजूर लोग हैं, हमारे किस दरवाजे में जाएं, किसके पास जाएं, किसकी आगे फरियाद करें, हम किसके पास जाएं? हमारे जाने के लिए रास्ता तो कोई भी नहीं है, लेकिन हमारे को किसी के इदारे से और ISI जितनी फोर्सेज है पाकिस्तानी इदारे के, सबके मेरे को भाई की आवाज और मेरे भाई को बाइज्जत, सारे बलोच लापता हैं, सबको बाजियाब किए जाए। थैंक यू। तमाम लापता अफराद को, तमाम लापता अफराद को बलोच
बलोच नस्ल कुशी, बलोच नस्ल कुशी, बलोचिस्तान में फेक इनकाउंटर्स, बलोचिस्तान में फेक इनकाउंटर्स, बलोच तलबा की जबरी गुमशुदगियां, बलोच तलबा की जबरी गुमशुदगियां। मुराद खान की फैमिली से दरख्वास्त है कि वो आए और अपने ख्यालात का इजहार करे। मुराद खान की फैमिली। मुराद खान की फैमिली अगर यहाँ मौजूद है इस वक्त तो वो आए और अपने ख्यालात का इजहार करे। लापता मूसा बलोच की फैमिली अगर यहाँ मौजूद है इस वक्त तो उनसे दरख्वास्त है कि वो आए। हैदराबाद से लापता है अगर कसूर हस्त नहीं तो तालता पेश कर दिया कसूर चेन्नई नहीं रिया कर बलूचिस्तान एक ऐसी जगह है कि जहाँ के लोग उसको शुरू से ही एक ऐसी जगह बनाया गया है कि जहाँ पे ना जिंदगी की सहूलियात है ना जिंदगी गुजारने के, और जहाँ ना तालीमी इदारे हैं और ना अस्पताल। वहाँ के लोग इतने दूर से बगैर किसी फैसिलिटी के यहाँ इतना लंबा सफर तय करके आए हैं। वो जिंदगी में अपने इतने मसरूफ ऐसे मासूम लोग हैं कि जिनको अब आपके सामने बोलना भी नहीं आता, लेकिन उसको रियासत की जानिब से उन्हें इतनी तकलीफ इतने दर्द दिए गए हैं कि कुछ आंखों से माजूर हो गए इस इंतजार में, कुछ अपने पाँव से माजूर है, कुछ हाथों से है और कुछ जिंदा अंदर ही अंदर घुट के रोजाना की बुनियाद पर ये माएं, ये बहनें, ये भाई मरते रहते हैं। और वो यही सवाल करते हैं। वो अगर बैठे हुए भी हो, वो कभी जैसे ही अगर वो नींद से भी बेदार हो जाए तो वो यही कहते हैं कि क्या हमारे प्यारे लौट आएंगे, क्या इस रियासत को उन पे कभी तरस आएगा, कि कभी उन्हें यहाँ से इंसाफ भी मिल पाएगा। लेकिन रियासत की संजीदगी का आलम ये है कि वो यहाँ आते हैं और हमें कहते हैं कि आप ये कुरान है, इसके लिए, इसकी खातिर आप यहाँ से उठ जाएं। तो हम उनसे ये कहना चाहते हैं कि जब आप हमारे नौजवान उठाते हैं तो यही माएँ जो यहाँ पीछे बैठे हुए हैं, ये बुजुर्ग बाप, ये भाई, ये भी जब आप उनको, ये आपके एहलकार जब उन्हें उठाते हैं तो ये भी उनके सामने वही कुरान हाथ जोड़ के अपने दामन फैला के आपके सिक्योरिटी फोर्सेस को भी कहते हैं खुदारा इन्हें मत उठाए, इन पर अगर कोई केस है, कोई इल्जाम है तो इनको अदालत में पेश करे, इनको गिरफ्तार करे कानूनी तरीके से, लेकिन इनको जबरी गुमशुदगी का निशाना ना बनाए। हमारे पास ऐसे खानदान भी है कि जो बोल नहीं सकते आपके सामने, वो यही कहते हैं कि अब हमें बोलना नहीं आता, हम बहुत बोल चुके हैं। वो उन्हें इतनी इस कदर अजियतें पहुंचाई गई है कि वो अब आपके सामने बोलने के भी काबिल नहीं है, लेकिन वो फिर भी यहाँ तक आए हैं सिर्फ अपनी आवाज पहुंचाने, वो सबको यही बताने कि उन पे क्या गुजरती है, उनके दिन कैसे गुजरती है, उनकी रातें कैसे गुजरती हैं। लापता बाबुल बलोच की फैमिली से दरख्वास्त है कि वो यहाँ आए और अपने ख्यालात का इजहार करें।
حمد پرا بچے गा रहे हैं असल में ये जमात हसैनी साल में हद सोबत करने حمد پرانی بچے गा रहे हैं सेमी साल में हद सोबत करने नाम लाबल ने अबल बलोच मास नाम मबीनी है नाम रहीमनी दका चोरी जतीमे ने फिरनी ने मासनी फिरी खोरे मासी खोरे कती ने फिरनी ने ब्रासनी का सैनिस्तनी लापता इबत खान की फैमिली इस वक्त यहाँ मौजूद है, तो उनसे दरख्वास्त है कि वो आए और अपने ख्यालात का इजहार करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अहमद खान का बेटा हूँ। मेरे बाप को 25/6/2011 से पकड़ा गया रखनी मेवट चैन से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अहमद खान का बेटा हूँ। मेरे वालिद साहब को 25/6/2011 से पकड़ा गया रखनी बेवटा चैन से। मैं अभी इधर असल इस्लामाबाद में आया हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अहमद खान बच्चा मैबा 25/6/2011 ना रखनी बेवटा चैनल गित्तश मैं अबा लापता है मार कोई पता नहीं। मैं इस्लामाबाद आती हूँ। डॉक्टर है बहुत शुक्रिया अदा करो। डॉक्टर हमारे इतना हिम्मत दर तमाम लापता अफराद को बलोच नस्ल कुशी, बलोच नस्ल कुशी। अब मैं दरख्वास्त करती हूँ लापता तैयब बलोच की फैमिली से कि वो आएं और अपने ख्यालात का इजहार करें। लापता तैयब बलोच के लवाकिन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद ताहिर लापता हाफिज़ मोहम्मद तजीब का भाई। मेरे भाई को 2013 4 मई बरोज़ हफ्ता को जालावान इस्पताल ज़िला खुददार से अगवा किया गया। मैं अपील करती हूँ आला हुकाम से, ताकतवर इदारों से कि जितने बलोच लापता है सबको बाजियाब किया जाए। अगर जिसके ऊपर जुर्म साबित है तो अपनी अदालतों में पेश करे, और जिस अदालतों को ये तनख्वाहें देते हैं, जिस अदालतों की रखवाली करते हैं, अपने ही बनाई हुई अदालतों में हमारे भाइयों को पेश करें। अगर उनके ऊपर जुर्म साबित है तो सज़ा दिया जाए, अगर जुर्म साबित नहीं है तो उनको बाजियाब किया जाए। हमारे घरों में हमारे माएँ बहनें परेशान है, गमज़दा है, और भाई का छोटा बेटा है वो भी हम परेशान है। पूरा उम्मत मुस्लिमा परेशान है। कोई भी हो, असल नस्ल, कोई कौम, कोई कबीला हो, पूरा दुनिया मुसलमान बलूचों के लिए रो रो के दुआ कर रहे हैं। इसलिए हम भी अपील करते हैं कि तमाम हमदर्द मुसलमान इस पर आवाज़ उठाए और हमारे आवाज़ में आवाज़ बनाए और हमारे साथ दे, क्योंकि मसला इस दुनिया का नहीं है, मसला आखिरत का है। आखिरत का है, असल हिसाब किताब वही होगा। हम भी इसलिए इधर आए हैं कि मजलूम लापता है, किसी का भाई है, किसी का बाप है, किसी का रिश्तेदार है। हम इसलिए आए हैं कि मजलूम है, मजलूम का मदद करना हमारे ऊपर फ़र्ज़ है, क्योंकि हम अल्लाह की दर पर शुक्रगुजार है कि हम मजलूम है, हम जालिम नहीं है। अल्लाह हम शुक्रगुजार है, हमें एक लम्हा के लिए भी जालिम नहीं बनाया, हमें मजलूम बनाया, क्योंकि मजलूम की दुआ को पर्दा नहीं है, क्योंकि मजलूम की आवाज़ ताकतवर है, क्योंकि ये दुनिया की आरज़ी सज़ा है। ऐ अल्लाह हमें आखिरत की सज़ा से बचाए, उनको भी बचाए जो हमारे साथ हमदर्दी रखते हैं। तो शुक्रिया सब हजरात का।
लापता मीराज की फैमिली से दरख्वास्त है कि वो आए और अपने ख्यालात का इजहार करे। अगर वो यहाँ मौजूद है इस वक्त तो उससे दरख्वास्त है कि वो आए और अपने ख्यालात का इजहार करे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मीर हज़ार का छोटा बेटा न भाई सदाम हुसैन हूँ। मेरा भाई मीर हज़ार 16 जून 2015 को सिपी से लापता हुआ है। मेरा घर बलूचिस्तान तालुका कोलू में है, मेरा तालुका कोलू में है। तो मेरा भाई को 9 साल हो गया है ताकि अभी तक लापता है। इसका कोई हाल हवाल नहीं है ताकि हम जहाँ कहाँ इसको ढूंढें और कहाँ है। इसके छोटे बच्चे हैं, ये घर वाले सारे परेशान हैं कि मेरा अब्बू किधर गया है और मेरे भाई किधर गए हैं। तो हम इस्लामाबाद इसलिए आए हुए हैं कि मैं अपनी भाई की रिहाई और उसको बाजियाब किया जाए। तमाम लापता अफराद की आवाज़ है कि हमारा तमाम लापता बलूच, तमाम लापता अफराद को बाजियाब किया जाए। शुक्रिया। लापता अब्दुर्रहमान की फैमिली से दरख्वास्त है कि वो आए और अपने ख्यालात का इजहार करें। तमाम लापता अफराद को, तमाम लापता अफराद को बलोच नस्ल कुशी, बलोच नस्ल कुशी। यकीनन मैं जब माहौल में तेरे कमी महसूस करता हूँ, थकी आंखों के पर्दे महसूस करता हूँ। बाप कौन होता है और बच्चों की परवरिश कैसे करता है, ये सब मैंने अपने दोस्तों के वालिदैन को करते देखा है। क्योंकि खुद आज तक ये रियलाइज न कर सका कि मैं यतीम हूँ या एक जिंदा बाप के वारिस। जी, मेरा नाम नबीदाद है। मैं लापता मास्टर का बेटा हूँ। मेरे वालिद साहिब को बलूचिस्तान के दारुल हुकूमत कोयटा में कायम जफराबाद FC चेक पोस्ट में FC और पाकिस्तान के खुफिया इदारों ने 9 जून 2011 को जबरी गुमशुदगी का शिकार बनाया। 13 साल गुजरने के बाद ताहाल हमें हमारे फैमिली वालों को मेरे वालिद साहब के हवाले से कोई मालूमात फराहम नहीं हो सका। हमने कई बार कोयटा प्रेस क्लब के सामने धरना दिया, लेकिन अफसोस हर बार तारीख पे तारीख झूठी तसल्लियां देकर हम मुतासरा खानदानों की जख्मों पे नमक पाशी की गई। लेकिन इस बार हम एक नई उम्मीद के साथ इस्लामाबाद आए। शायद इस बार हमें यहाँ इंसाफ मिल सके, शायद हमें यहाँ इंसाफ मिल सके। मैं समझता हूँ कि मेरे कामरेड बहनों ने गुज़िश्ता चंद दिनों में इस्लामाबाद प्रेस क्लब में मुल्की और बैनुल-अक़वामी ज़राए अबलाग के सामने जिस बहादुरी और दिलेरी के साथ लापता अफराद के खानदानों का केस पेश किया, वो तमाम लापता अफराद के खानदानों की दुख, दर्द, तकलीफ और मुसीबतों और इन बूढ़ी माओं के टपकती आंसुओं की 100% अकास हैं। मुझे समझ नहीं आता कि कब तक हम इन तंद तेज तूफानों का मुकाबला कर सके, कब तक जिंदगी में ऐसे हम अजियत में रहें। नाजरीन, लख्त जगर की जुदाई का दर्द सिर्फ वो लोग ही समझ सकते हैं जिनके ऊपर खुद यह दर्दनाक मामला गुजर रहा हो या गुजर चुका हो। मुझे अच्छी तरह मालूम है कि हर लापता अफराद की खानदान
अपनी जगह एक दर्दनाक और दुख भरी कहानी है। उन कहानियों को बयान करने की हिम्मत व हौसला शायद हम जैसे कमजोर इंसान नहीं रखते। इसलिए मैं हाजरीन के मजीद वक़्त ज़ाया किए बगैर तमाम इंसानी हकूक़ के आलमी इदारों से, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से ये अपील करता हूँ कि मेरे वालिदैन समेत तमाम बलोच लापता अफराद को बाजियाब किया जाए। अगर उन्होंने कोई जुर्म भी किया तो मुल्क के कानूनी इदारे मौजूद हैं, उन्हें अदालतों में पेश करे। बड़ी बड़ी किताबों में शायद ऐसी कोई लफ्ज़ ज़रूर लिखी होगी जो हमें हमारे बिछड़े हुए लोगों की दीदार नसीब करे। बड़े बड़े ऐवानों में बैठकर ताकत के नशे में शायद इस लफ्ज को समझना या इस दर्द को समझना उन लोगों के लिए गिरा होगा। मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से यही दुआ करता हूँ कि तमाम लापता अफराद के बाजियाबी के साथ साथ मेरे बहनों की ये अजीम तहरीक कामयाब व सुरखरू रहे। थैंक यू। कैंप में इस वक्त हमारे पास जो फैमिलीज की तादाद है वो एक बड़ी तादाद है जो दिन रात यहाँ कैंप में मौजूद होते हैं। तो हमारी कोशिश है कि हम तमाम फैमिलीज को बराबर टाइम दे सके और जो हमारे नए आने वाले फैमिलीज, हमारी कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा उनके केसेस को कवरेज दी जा सके। ये तमाम जो खानदान इस वक्त आपके सामने अपना दर्द बयान कर रहे हैं, अपने लोगों की बाजियाबी का मुतालबा कर रहे हैं, ये हमारे पास वो खानदान है जो अभी हमारे पास इन 2 दिनों में आए हुए हैं। और उन बलूचिस्तान से आने वाले जो लापता अफराद के लवाहिकीन के आने का सिलसिला है ये जारी है। और ये आपके सामने जो बैठे हुए ये लवाहिकीन है, अगर आप उस तादाद को देखें तो ये उसका 5% भी नहीं है। पूरा बलूचिस्तान के उसमें एक ऐसा घराना भी नहीं है जो जबरी गुमशुदगी जैसे इस अमल से महफूज हो। जितने भी घर है, जितने भी लोग हैं, तमाम इस दर्द से, इस तकलीफ से गुजर रहे हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जो आने की ताकत नहीं रखते और कुछ है कि जिन्हें आपने देखा कि ये लॉन्ग मार्च जो अपना रास्ता तय करते हुए अपनी मंजिल की जानिब बढ़ रहा था तो रास्ते में किस कदर मुश्किलात आई, उन्हें रोका गया, उनको पीछे उठाने की कोशिशें की गई। तो बिल्कुल इसी तरह यही दरख्वास्त करते हैं कि खुदारा उन्हें ज्यादा से ज्यादा नहीं लेकिन उन्हें अदालतों में पेश किया जाए, उन्हें मंजर-ए-आम पर लाया जाए। लेकिन ये कैंप सिर्फ आज का नहीं है, ये तहरीक सिर्फ आज की नहीं है। बहुत से ऐसे एहतजाजी मुजाहरे किए गए, ऐसे कैंप लगाए गए, धरने दिए गए और इंतजामिया की हटदर्मी और रियासत की जो हटदर्मी है वो हर बार हमारे सामने आती है। ये कोई आज की बात नहीं है। ये बलोच अपनी जिंदगी 70 सालों से इसी तरह जी रहे हैं। कभी वो सामने आते हैं तो कभी वो वही जिंदगी बलूचिस्तान में जी रहे हैं कि जहाँ पे मीडिया का कोई वजूद भी शायद हम कह सके तो ये दुरुस्त होगा कि वहाँ पे कोई खुद मुख्तार ना कोई ऐसा मीडिया है ना कोई इदारा है जो उनकी आवाज़ सुन सके या लोगों तक पहुँचा सके। इसी तरह हमारे पास एक और खानदान मुराद बख्श की फैमिली अगर यहाँ पे मौजूद है तो वो आए और अपने ख्यालात का इजहार करें। लापता मुराद बख्श की फैमिली से दरख्वास्त है कि वो आए और अपने ख्यालात का इजहार करें। तमाम लापता अफराद को मैं बताऊँ मेरा भाई गिरफ्तार हो गया, 3 साल में खून हो गया। अल्लाह मेहरबानी, इसको मालूम था करना तो मुझको मालूम करना है। गरीब लोग है, उनको ऐसा नहीं था कि शाम से खाता है सुबह रोजाना खाता। दूसरे मजदूर ऐसा नहीं होता जो गलत काम करते थे। तो हमारा मोबाइल हमारा ड्रेस है इसमें कैसा बनाता तुम? तो मेरा भाई इससे तुम खोटा है, दहशत गर्द है। ऐसा करते वो नहीं करते, वो करते तो सारा लोग दहशत गर्द है।
کوئی ہم لوگ کو نہیں کرا گیا، کوئی چیز اس کو نکل گیا تو ہم لوگ کو معلوم کرنا. میرا بھائی سے 3 سال ہو گیا، کوئی لاپتہ، اس کو بچے کا من کو کیا. بلوچ نسل کشی، بلوچ نسل کشی، بلوچستان میں فیک انکاؤنٹرز، بلوچستان میں فیک انکاؤنٹرز. لاپتہ سمیر احمد کی فیملی اگر اس وقت یہاں موجود ہے تو وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں. سمیر کا سمیر پتا منچو 2013 رگالتا دوتیا گپتی بورتی سیا من مکران پشتا آیا بسی بسی لوٹا کارڈ لوٹا می کارڈا بجا میں روا دوتیا بچے برو بنے کوچیا نازنتا اما کوچی نندرین گارے 2013 مئی 5 تاریخ کا. لاپتہ عبد الرحمان کی فیملی سے گزارش ہے کہ وہ آئے اور اپنے خیالات کا اظہار کرے. لاپتہ عبد الرحمان کی فیملی سے گزارش ہے کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کرے اگر وہ اس وقت یہاں پہ موجود ہے تو. السلام علیکم. ہمارا چاچا کا بیٹا ہے عبد الرحمان. ٹھیکیدار ٹھیکیداری کارا کنوے میں کیسے میں برازات کے میں یہ وقت کیسے دہا کنوا گیا میں ماس گوار کل رڑگا جو میں کسا کچھ نہیں ہوتا ما وسی جنت لوگ نشتی اسو میں لوگات کو مارا کشتو اب کو کثیر والی کثیر دے بے کثیر بور اے میں عدالت حق کے ما وترا ترا دا کنا میں ما سگوار مشی کلن گھنی اے نشتیاں پتائی اتروا ما ترا اے دا ہو گلا بلوچانی کلانی رستے ہر بلوچے کے کلانی ما سپیز کے میں حق ما وسی میرت جند میرت چکانستی ہوں تمہار کہے جند لوگ گرے برے اے مسلمانی اجازت نہیں. السلام علیکم. جیسے کہ ہمارے لاپتہ افراد کی جو لواحقین ہیں اس وقت ہمارے ساتھ کیمپ میں بھی ان کی بڑی تعداد موجود ہے اور ان کے آنے کا جو سلسلہ ہے وہ جاری ہے، وہ روزانہ کی بنیاد پر، اور یہاں پہ رجسٹریشن بھی ہو رہی ہے. تو ہماری یہی کوشش ہے کہ جو نئے فیملیز ہیں ان کو بولنے کا موقع دیا جائے، ان کو سنا جائے اور انہیں ٹائم دیا جائے. آگے بھی ہماری یہی کوشش ہوگی کہ ہم اپنی فیملیز کو اسی طرح جو ہماری ترتیب ہے اس کو آگے لے کے جائیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ اس کے بعد جو ہمارے پاس فیملیز ہوں گی ان سے بھی بات کی جائے گی کچھ دیر کے وقفے کے بعد.